My lovely students, welcome to Mathological. In this session, we'll be discussing questions of critical reasoning that have appeared in SNAP 2 examination that happened today on the 14th of December in the shift 1. So start करते हैं session को, and if you've not already subscribed to the channel, make sure to subscribe to the channel as well as like the content if you're liking it. So first question लेते हैं. First question is on syllogism. We'll be discussing all the questions on critical reasoning that appeared today. So first one. The statements are given. Conclusion, we have to find out. Syllogism, typical question. All squares are circles. Only a few circles are triangles. And some triangles are rectangles. Okay. So all squares are circles. Any squares will be inside the set of circles. Next, only a few circles are triangle. Only a few. Only a few implies that some, but definitely not all. Only a few circles are triangles. Because some circles are triangles, but not all, for sure. Like we are definite about this part that some circles are triangles, or we are also definite about this part that some circles are not triangles. Both are equally true. Next case, some triangles are rectangles. Like between triangles and rectangles, we are sure about the part that some triangles are rectangles, but we are not sure कि इसके बाहर कुछ होगा कि नहीं होगा. We are not sure. Okay, अब conclusion पे चलते हैं. First conclusion, some squares being triangles is a possibility. So all squares are inside the circles, but some squares being triangles is definitely possible. है कि नहीं? Because squares can also be in this part. That is also possible. So definitely this is a possibility. ठीक है, possibility सिर्फ कब नहीं होता है? तब नहीं होता है when there is a blockage between them. ठीक है कि if this was sure कि no circle can be a triangle और सारे के सारे squares inside circle हैं, then we are sure कि no square can be a triangle. But यहाँ पे since some squares are for sure squares बोलना है, some circles are for sure triangles and some circles are for sure not triangles, so definitely squares can also be triangles. Some squares can also be triangles. This is possible case. Next, some circles are not triangles, so we already know that some circles are not triangles because only a few is mentioned. So second is absolutely correct. Both are correct. Both follow. Option C will be the answer. क्लियर है बात? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, statement and course of action based question. Statement is saying a recent report indicates that the dropout rate of students from government colleges has increased significantly over the past few years. अब ये जो क्वेश्चंस हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, थोड़ा बहुत इसमें लैंग्वेज में डिफरेंस मिलेगा, बट द पॉइंट इज कि आंसर सेम ही रहेगा जो हम डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, एज पर द इनपुट्स ऑफ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बनाया मैंने. तो स्टेटमेंट कह रहा है रिसेंट रिपोर्ट इंडिकेट करता है दैट ड्रॉप आउट रेट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेजेस हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स. तो ड्रॉप आउट रेट इंक्रीज किया है. कोर्स ऑफ एक्शन नंबर 1, द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली क्लोज डाउन ऑल सच कॉलेजेस टू सेव पब्लिक फंड्स. ठीक है, पब्लिक फंड सेव करने का क्या करना है? कॉलेजेस को क्लोज डाउन कर दो. ड्रॉप आउट रेट हैज़ डिक्रीज्ड. ऐसा नहीं हुआ है कि कॉलेजेस में बच्चे ही नहीं है, तो देर आर स्टूडेंट्स इन द कॉलेजेस. अब उनका क्या होगा अगर तुम कॉलेज को क्लोज डाउन कर दोगे? डेफिनेटली दिस इज अ वेरी एक्सट्रीम वेरी हार्श एक्शन, और गवर्नमेंट कभी भी ऐसा नहीं करेगी. ठीक है, दिस इज नेवर टेकन. कभी नहीं ले सकते ऐसा स्टेप कि सारे के सारे कॉलेज को क्लोज डाउन कर दो. इवन इफ अगर ड्रॉप आउट रेट इतना ज़्यादा हो जाए कि 80-90% हो जाए, तब भी कॉलेज को क्लोज डाउन करना विल नॉट बी अ राइट एक्शन. इवन इन दैट केस तब भी द गवर्नमेंट मस्ट आइडेंटिफाई कॉजेज कि क्यों ऐसा हो रहा है, वाई द ड्रॉप आउट रेट इज सो हाई, एंड देन फाइंड आउट द रीजंस एंड देन आइडेंटिफाई सॉल्यूशंस कि कैसे सॉल्व करोगे इसको और कैसे ड्रॉप आउट रेट को कम करोगे, मिनिमाइज करोगे और कैसे एनरोलमेंट्स को बढ़ाओगे. ठीक है, तो क्लोजिंग डाउन कॉलेज और स्कूल इज डेफिनेटली नेवर अ सोल्यूशन. ठीक है, नी जर्क रिएक्शन है इवन इफ पब्लिक फंड को सेव करना, बट दिस इज नॉट द राइट वे टू सेव पब्लिक फंडिंग. Second case, government should set up a committee to review the situation and identify the root cause of the increasing dropout rate. So definitely this second one is correct course of action. Set up a committee to review and identify the root causes. So only second follows in this case. Option B easy question था. I believe कि most of you must have marked only 2 in this case. ये question तो difficult नहीं था, इसमें फंसने वाला स्कोप नहीं है ज़्यादा. गलती किया हो तो बात अलग है. ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कॉज एंड इफेक्ट बेस्ड. कॉज एंड इफेक्ट बेस्ड क्वेश्चन में हमेशा क्या करते हैं? सबसे पहले विल बी चेकिंग ऑन अ कॉजल लिंकेज. तो अगर कॉजल लिंकेज है उनके बीच में, देन वी वेरीफाइंग वेदर फर्स्ट इज कॉज और सेकंड इज इफेक्ट, और सेकंड इज कॉज एंड फर्स्ट इज इफेक्ट. तो स्टेटमेंट हमारा कह रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट, देयर वाज हैवी रेनफॉल इन द सिटी थ्रू आउट द नाइट. सेकंड, स्कूल्स इन द सिटी आर क्लोज्ड फॉर द डे. हैवी रेनफॉल हुआ है एंड हेंस स्कूल्स कैन बी क्लोज्ड. कनेक्शन तो है, कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है कि हैवी रेनफॉल है एंड देन स्कूल्स कैन बी क्लोज्ड. क्या ऑपोजिट हो सकता है कि स्कूल्स आर क्लोज्ड
देयर वाज हैवी एंड हेंस देयर वाज हैवी रेनफॉल। तो स्कूल क्लोज होने की वजह से हैवी रेनफॉल थोड़ी होगा, बट यस हैवी रेनफॉल की वजह से स्कूल्स कैन बी क्लोज्ड। एंड सिंस देयर इज अ कॉजल लिंकेज, तो डेफिनेटली फर्स्ट इज कॉज एंड सेकंड इज इफेक्ट। जब भी कॉजल लिंकेज होगा तो हमें मार्क करना है वहाँ पे, ठीक है। फिर वहाँ पे ये नहीं सोचना है कि जरूरत थोड़ी स्कूल और भी वजह से बंद हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, बट सिंस हमारा इन्फॉर्मेशन हमें लिमिटेड गिवन है, उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इफ हैवी रेनफॉल वाज देयर देन स्कूल विल बी क्लोज्ड। तो यस दिस रीजनिंग इज सफिशिएंट कि कॉज से इफेक्ट कनेक्शन बन रहा है, तो यस फर्स्ट इज कॉज एंड सेकंड इज इफेक्ट। क्या ये क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये भी मोस्टली लोगों ने करेक्ट किया होगा। अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं, स्टेटमेंट एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट कह रहा है यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन हैज पुट अप अ नोटिस, प्लीज यूज द पेव्ड पाथवेज एंड अवॉइड वॉकिंग ऑन द ग्रास। नोटिस पुटअप किया है, प्लीज यूज द पेव्ड पाथवेज एंड अवॉइड वॉकिंग ऑन द ग्रास। अगर कोई नोटिस पुटअप किया है तो उस नोटिस के पीछे कोई ना कोई अजम्पशन होगा, अजम्पशन इम्प्लिसिट होगा कि नोटिस मस्ट हैव बीन द रीजन। कि अगर नोटिस से कह रहा है कि पेव्ड पाथवे को यूज करो, अवॉइड वॉकिंग ऑन द ग्रास, यानी कि देयर मस्ट हैव बीन सम स्टूडेंट्स जो पहले ग्रास पे वॉक कर रहे थे। तो पहला चीज तो ये इम्प्लिसिट हुआ। सेकंड ये इम्प्लिसिट हुआ कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये भी बिलीव किया होगा कि आफ्टर दिस नोटिस स्टूडेंट्स विल कंप्लाई विद द नोटिस एंड स्टॉप वॉकिंग ऑन द क्रॉस। ये अजम्पशन तो किया होगा, कितने करेंगे नहीं करेंगे वो एक बात की बात है, पोस्ट फैक्टो बात है, बट एज्यूम तो ये किया होगा। एजम्पशन नंबर 1 कह रहा है स्टूडेंट्स वॉक ऑन द गार्डन ग्रास, ठीक है। और जब भी एजम्पशन को निगेट करना हो, आइडेंटिफाई करना हो कि वेदर दैट इज इम्प्लिसिट और नॉट, कैसे करोगे? निगेट करोगे। एजम्पशन क्या है? फाउंडेशन है स्टेटमेंट का, बार बार हम ये डिस्कस कर चुके हैं। तो अजम्पशन फाउंडेशन है, निगेट करते ही स्टेटमेंट में फर्क पड़ना चाहिए। सो इफ वी इंस्टेड निगेट द अजम्पशन फर्स्ट वाले को कि स्टूडेंट्स डू नॉट वॉक ऑन द गार्डन ग्रास, तो अगर वॉक ही नहीं करते हैं गार्डन ग्रास पे तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ पुटिंग अप सच अ नोटिस। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स वॉक ऑन द गार्डन ग्रास, दैट इज करेक्ट, ठीक है। ये नहीं कह रहा सब करते हैं, बट कुछ तो करते ही होंगे, तभी ये नोटिस पुटअप किया गया। सेकंड, स्टूडेंट्स विल कंप्लाई विद द नोटिस एंड स्टॉप वॉकिंग ऑन द ग्रास, डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो इम्प्लिसिट कि वो कंप्लाई करेंगे और स्टॉप कर देंगे वॉक करना, ठीक है। एक्चुअली पोस्ट फैक्टो क्या होता है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट अजम्पशन ये हमेशा ही रहेगा कि अगर कुछ किया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें जब सेशन भी लिया था तो भी ये एग्जाम्पल दिया था कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम मेकिंग अ वीडियो, तो आई एम एज्यूमिंग दिस थिंग कि मेनी स्टूडेंट्स विल बी वॉचिंग दिस सेशन, ओके। अब वो कितने वॉच करेंगे नहीं करेंगे ये बात की बात है, बट द पॉइंट इज कि मेरा अजम्पशन तो ये जरूर रहेगा, क्योंकि अजम्पशन ही ये नहीं होगा तो फिर वीडियो बनाने का कोई पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। मेक श्योर हिट द लाइक बटन फॉर दिस सेशन एज वेल। अगर सेशन पसंद आता है तो यहाँ पे दोनों ही अजम्पशंस हमारे इम्प्लिसिट हैं, बोथ आर इम्प्लिसिट। ऑप्शन डी विल बी द आंसर। एग्जाम में ऑप्शन डिफरेंट होगा, हो सकता है, बट द पॉइंट इज कि बोथ आर इम्प्लिसिट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम, यू डिड नॉट पास द एग्जाम देयरफॉर। अब इस क्वेश्चन में फॉर्मेटिंग में ये भी हो सकता है यू डिड नॉट पास द एग्जाम ऑप्शन के साथ में गिवन हो, एक बार कमेंट में मेंशन करना, बट द पॉइंट इज कि ऑप्शंस ऐसे ही रहे होंगे और लॉजिक भी क्लियर ही है इस क्वेश्चन का। इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम, सो देयर इज अ क्लियर इंडिकेशन दैट इफ यू आर स्टडी हार्ड implies you pass the exam, okay। There is a clear direction to this statement that studying hard results in passing the exam, ठीक है। देयर माइट बी अदर फैक्टर्स दैट कैन रिजल्ट इन पासिंग द एग्जाम, ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टडी हार्ड के अलावा कोई और फैक्टर नहीं हो सकता दैट कैन रिजल्ट इन पासिंग द एग्जाम, बट स्टडिंग हार्ड इंश्योर्स पासिंग द एग्जाम एंड यू डिड नॉट पास द एग्जाम, ठीक है। सो दिस डिड नॉट पास द एग्जाम इंश्योर्स indicates that you did not study hard, because if you did study hard then for sure you must have passed, but you have not passed, then definitely that implies that you have not studied hard, ठीक है। यहाँ पे हमें ऑप्शंस क्या दिए हुए थे, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा था पासिंग द एग्जाम गारंटीज यू स्टडी हार्ड, डेफिनेटली दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है। यू कैन पास द एग्जाम विदाउट स्टडिंग हार्ड, दैट इज पॉसिबल एज पर द गिवन स्टेटमेंट, एज पर द गिवन स्टेटमेंट ये पॉसिबल है कि यू मे पास द एग्जाम इवन विदाउट स्टडिंग हार्ड, but if you have studied hard then you will definitely pass the exam. So first option is not correct. Second, you studied hard, again does not make sense, because if you studied hard you would have passed the exam, but the result is you have not passed the exam. You did not study hard is the correct answer. And option D, not studying hard guarantees that you fail, again this is also not correct, okay, because you might still pass without studying hard, ठीक है। इसको सिलोजिज्म के टर्म्स में समझें तो ऐसे समझो कि स्टडी हार्ड एंड पास द एग्जाम इंप्लाइज that all study hard are pass, ठीक है। ये ज्यादा बेटर समझ में आएगा तुमको कि all study hard are pass, यानी कि study hard is basically a subset of pass, ठीक है। study hard is basically a subset of pass, यानी कि there may be other factors of passing, ठीक है, बट पासिंग के बाहर कोई स्टडी हार्ड नहीं है, ठीक है। सो स्टडी हार्ड ऑलवेज इंप्लाइज पास, क्या ये समझ पा रहे हो, ठीक है, कि नॉट स्टडी हार्ड मे स्टिल रिजल्ट इन पासिंग और मे बी फेलिंग, क्योंकि पास के बाहर सब कुछ फेल है, ठीक है। तो नॉट स्टडिंग हार्ड मे ऑल्सो इंप्लाई पासिंग,
or failing, but studying hard ensures that you pass. क्या ये क्लियर है? ठीक है, जैसे एक और सिंपल सा एग्जांपल लें कि इफ यू आर इन पेरिस, यू आर इन फ्रांस। करेक्ट है? ठीक है, इफ यू आर इन पेरिस, यू आर इन फ्रांस। और फिर स्टेटमेंट कर रहा है कि यू आर इन जर्मनी। तो यू आर इन जर्मनी implies that you are not in France, but this also implies that you are not in Paris. If you are in Germany, then you are not in Paris. That is also for sure. ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं कि when it rains, या फिर यहां पे भी कह सकते थे कि if you are in Paris, you are in France। देखिए पेरिस इज सबसेट ऑफ फ्रांस, एंड यू आर इन जर्मनी यानी कि यू आर आउटसाइड फ्रांस, तो यू आर डेफिनेटली नॉट इन पेरिस। ओके, वन मोर एग्जांपल, इफ इट रेन्स it gets wet. If it rains, it gets wet and it is dry. ये mentioned है, it is dry यानी कि it is not wet. If it is dry, it concludes that it has not rained. Because if it had rained, तो definitely wet होता, but wet नहीं है, dry है, ठीक है, तो it had not rained for sure. Okay. और अगेन यहाँ पे भी बनाओगे स्ट्रक्चर कैसा बनाओगे कि रेन इज इनसाइड वेट, क्योंकि बाकी फैक्टर्स की वजह से ही वेट हो सकता है सरफेस, बट रेन की वजह से भी होगा, और रेन होगा तो ज़रूर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट इज गिवन एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई कि इफ ट्रू विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस वुड मोस्ट वीकन द आर्गुमेंट अबव। स्टेटमेंट कह रहा है क्राइम रेट इन द सिटी हैज significantly reduced after the installation of LED street lights in all major neighborhoods. Therefore, the installation of LED lights is primary reason for the decline in crime. Crime rate has reduced and installation of LED lights have also been installed. तो क्वेश्चन ये कह रहा है, स्टेटमेंट ये कह रहा है कि कोरिलेशन है दोनों के बीच में, कि LED lights have resulted in crime rate reduction। और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड मोस्ट वीकन द आर्ग्यूमेंट अबव। तो वीकन कब करेगा आर्ग्यूमेंट को? जबकि LED लाइट्स आर नॉट रिजल्टिंग इन क्राइम रेट रिडक्शन, देयर माइट बी सम अदर रीजन। क्योंकि स्टेटमेंट यही कह रहा है कि LED लाइट्स आर द रीजन बिहाइंड क्राइम रेट रिडक्शन। सो इफ वी फाइंड आउट सम अदर रीजन बिहाइंड क्राइम रेट रिडक्शन, देन द आर्ग्यूमेंट, द स्टेटमेंट गेट्स वीकेंड। ऑप्शन ए, द एनर्जी कंजम्पशन ऑफ द सिटी हैज रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली आफ्टर द इंस्टॉलेशन। अब ये कहीं पे भी हमारे आर्ग्यूमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा है, यानी कि LED लाइट और क्राइम के कनेक्शन के बारे में कुछ भी बात नहीं कर रहा है। दिस इज नॉट करेक्ट। एनर्जी कंजम्पशन हैज रिड्यूस्ड, मे बी इट हैज, बट दैट इज नॉट द पॉइंट, दैट इज नॉट व्हाट वी आर डिस्कसिंग इन दिस क्वेश्चन। Option B, police department doubled the number of patrolling officers in the same neighborhood during the same period. तो same neighborhood, same period, पुलिस डिपार्टमेंट ने क्या किया है? डबल किया है नंबर ऑफ पेट्रोलिंग ऑफिसर्स को। तो डेफिनेटली दिस कुड बी अल्टरनेट कॉज। सेम क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था, ऐसा ही अल्टरनेट कॉज वाला, वीकेंड वाला, आई गेस। ठीक है, सो अल्टरनेट कॉज हो सकता है, और अगर ये अल्टरनेट कॉज हुआ तो डेफिनेटली इफ वी इंक्लूड दिस ऑप्शन बी, तो इफ दिस इज ट्रू देन डेफिनेटली आवर स्टेटमेंट, our argument in the statement gets weakened, because then there is another reasoning that can explain कि why the crime rate has reduced. तो option B is correct answer. Option C कह रहा है residents feel safer walking on the streets at night due to better lighting. Even if that is true, but ये कहीं पे भी हमारा crime rate और LED के कनेक्शन की बात नहीं कर रहा है, तो not the correct answer. And potholes and road damages are more visible to drivers now. Again same point, these are irrelevant. तो A, C and D are irrelevant. Only B is the correct answer in this case. Okay. Next question. A recent study has revealed that there is an alarming drop in the groundwater level in the various parts of city. एक recent study ने reveal किया है that there is an alarming drop. Alarming word is important here. Alarming drop in the groundwater level in various parts of city. Now, course of action number 1 is saying digging of new borewells should be banned immediately in the affected areas. So, since there is an alarming drop in the groundwater, so digging of new borewells should be banned. ठीक है, should be banned. Yes, this is the correct course of action. Considering there is an alarming drop, so definitely new borewells should not be banned immediately in the affected areas. So this is the correct course of action. Action number 2, rainwater harvesting should be made compulsory for all households and industries all over the state. अब ये क्वेश्चन में एक बार मेंशन करना है, क्योंकि कई बच्चों ने बताया कि ऑल ओवर द स्टेट वॉज देयर, और यही कैच है इस सेकंड स्टेटमेंट में
कि जो तुम्हारे लिए ऑप्शन को चूज करना आसान बनाता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुड बी मेड कंपलसरी फॉर ऑल हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रीज ऑल ओवर द स्टेट। हमारा स्टेटमेंट है अबाउट द सिटी एंड दिस सेकंड स्टेटमेंट इज टॉकिंग अबाउट स्टेट। तो ऑल ओवर द स्टेट रेन वाटर हार्वेस्टिंग को मैंडेटरी क्यों करोगे, कंपलसरी क्यों करोगे फॉर ऑल हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रीज? तो डेफिनेटली सेकंड वन इज इनकरेक्ट। ठीक है, अगर ऑल ओवर द स्टेट ना मेंशन होता तब भी हमें सोचना पड़ता कि शुड बी मेड कंपलसरी है, तो क्या कंपलसरी बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? तो वहां पे थोड़ा सा स्केची हो जाता है ये ऑप्शन। ठीक है, कि इवन इफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ गुड सॉल्यूशन फॉर द ड्रॉप इन वाटर लेवल, ठीक है, कि डेफिनेटली वहां पे हमारे पास अल्टरनेट ऑप्शन होगा टू यूज वाटर, तो डेफिनेटली रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ गुड सॉल्यूशन, बट मैंडेटरी करना दैट इज स्लाइटली ऑन द एक्सट्रीम साइड। और फिर ऑल ओवर द स्टेट तो डेफिनेटली डज नॉट मेक सेंस, क्योंकि एक सिटी के बारे में बात हो रहा है और यहाँ पे स्टेट के बारे में बात हो रहा है। सेकंड डेफिनेटली शुड बी इनकरेक्ट। फर्स्ट इज शुड बी अवर कोर्स ऑफ एक्शन दैट शुड बी फॉलोड, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। क्या क्लियर? और सिमिलर क्वेश्चन हमने किया था सेशन में, तो उसको भी एक बार साथ में देख लेते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। दिस was the question that we discussed in a session. A recent report indicates that groundwater level in the city has depleted by 40% in the last 5 years due to uncheckered boring by private residential complexes. तो यहाँ पे रीजनिंग भी गिवन था क्यों ड्रॉप हुआ है, बिकॉज ऑफ अनचेकर्ड बोरिंग बाई प्राइवेट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस एंड देयर वाज अ ड्रॉप ऑफ 40% इन द लास्ट 5 years. कोर्स ऑफ एक्शन नंबर 1 था द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन शुड इमीडिएटली बैन ऑल प्राइवेट वाटर बोरिंग एंड सील एग्जिस्टिंग बोरवेल्स। अब यहाँ तक बात ठीक है, ठीक है, पर फ्यूचर के लिए होता तो भी ठीक था। और फिर बाद में क्या रहा है, सील एग्जिस्टिंग बोरवेल्स एज वेल। ये बिल्कुल एक्सट्रीम एक्शन हो गया, दैट इज वाई दिस शुड नॉट हैव बीन टेकन। एग्जिस्टिंग बोरवेल्स को ही बंद कर दो, क्लोज कर दो, ठीक है, और बाकी सारा प्राइवेट बोरिंग भी कंप्लीटली बैन कर दो इमीडिएटली। इवन इफ देयर इज अ ह्यूज ड्रॉप, ठीक है, एग्जिस्टिंग बोरवेल्स को भी सबको सील कर दो, सब कुछ खत्म कर दो, तो ये एक एक्सट्रीम सिनारियो हो गया। इस क्वेश्चन में क्या है कि डिगिंग ऑफ न्यू बोरवेल्स शुड बी बैंड। लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड ऑल्सो इन अफेक्टेड एरियाज। और सेकंड स्टेटमेंट था हमारा द वाटर डिपार्टमेंट शुड इम्पोज अ हैवी सेस ऑन ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन एंड प्रमोट रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैंडेटरीली। यहाँ भी मैंडेटरी वर्ड का यूज है, बट साथ में देखो क्या यूज है, प्रमोट। प्रमोट है, इंस्टॉलेशन कंपलसरी नहीं करना है, प्रमोट करना है, प्रमोशन मैंडेटरी है। तो मैंडेटरी इज नॉट दैट एक्सट्रीम विद प्रमोशन, बट विद इंस्टॉलेशन, with making it compulsory that every household, every industry must have rainwater harvesting, that is harsh, that is very extreme, because हर जगह पे this is not practically possible. That is why second statement should not be considered here. But in this question, first incorrect था और second को हम correct मानेंगे. Because imposing a heavy cess on groundwater extraction is called for given the condition of groundwater levels. ठीक है, बट फर्स्ट वन वाला ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा। तो क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि लॉजिक हमारे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ क्वेश्चन ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग, कि एक्जैक्टली वर्डिंग क्या है वहाँ पे, और कौन सा वर्डिंग, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन, कौन सा अजम्पशन में कहाँ पे फंसा रहा है। तो इन सब चीज़ों को जब आइडेंटिफाई कर पाओगे एग्जाम में प्रॉपरली, प्रैक्टिस थोड़ा बहुत करने के बाद में, तो डेफिनेटली यूल बी अटेम्प्टिंग दोज क्वेश्चन करेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है, सो आई बिलीव दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन दैट वे टू डिस्कस। और इतना ही रखते हैं सेशन में, जो भी डिस्कस किया वो समझ में आएगा। फिर भी कभी किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट एज वेल। अगर सेशन पसंद आया है, एक्सप्लेनेशन क्लियर हुए हैं, तो इस सेशन को लाइक जरूर करना, और साथ में चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लेना। एंड योर कमेंट्स एंड फीडबैक इज ऑलवेज वेलकम। दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर।